Hello everyone. Today we are going to continue our third chapter of class 9, which is atoms and molecules, and this is part 6 of this chapter. Okay, and in this part we will study about molecular mass, formula unit mass, mole concept, and the last one is molar mass. Then let's start our first topic, which is molecular mass. एटॉमिक मास की हमने बात कर ली थी पहले. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास की. देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी नंबर ऑफ एटम्स के मासेस को सम करके जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास. दैट्स क्लियर. देन फॉर द एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल ऑफ, सबसे पहले वाटर. वही सब हम सबसे ज्यादा एग्जांपल में यूज लेते हैं, तो सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं, व्हिच इज H2O. Then this is the molecule of water. Then how can we calculate the molecular mass of water? Then here the number of hydrogen is 2 multiplied by atomic mass of hydrogen plus the number of oxygen, which is 1, into atomic mass of oxygen equals to 2 into atomic mass of hydrogen is 1 plus 1 into atomic mass of oxygen is 16, then equals to 2 plus 16 equals to 18, and the molecular mass is represented in atomic mass unit or unified mass, and the symbol for unified mass is U. Okay, then next example is of methanol, CH3OH. Then how can we calculate the molecular mass of methanol? Then the number of carbon is 1 multiplied by atomic mass of carbon plus the number of hydrogen is 4 into atomic mass of hydrogen plus the number of oxygen 1 multiplied by atomic mass of oxygen. Okay, then by the calculation 1 into atomic mass of carbon is 12 plus 4 into atomic mass of hydrogen is 1 plus 1 into atomic mass of oxygen is 16, then equals to 12 plus 4 plus 16, then 14, 20, 30, 32. Then the atomic mass of methanol is 32U. Okay, U, that means unified mass, which is similarly to atomic mass unit. Okay, the next one is formula unit mass. The sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a substance is called the formula unit mass of the substance. We use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. तो क्या होता है, मतलब कि कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके जो क्या होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स नहीं होता है. तो जो पर्टिकुलर फिक्स मॉलिक्यूल फिक्स ना होने की वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है वो किस में प्रेजेंट होता है, एक मतलब कि एक फॉर्मूला यूनिट में. तो उन कंपाउंड्स के लिए हम जो मास है वो कौन सी टर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं? इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास. जनरली जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो हम किन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं? देन फॉर द कंपाउंड्स इन विच द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दैट मींस आयनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. एंड सोडियम क्लोराइड सिमिलरली जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था वैसे ही हमें फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द नंबर ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस द नंबर ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड equals to 1 into atomic mass of sodium is 23 plus 1 into atomic mass of chlorine is 35.5 equals to 23 plus 50 35.5 equals to 58.5
U. Then in such a way we can calculate formula unit mass. अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें CaCl2, तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40. Then the number of potassium is 1. Then 1 into 40 plus 2, the number of chlorine, and the atomic mass of chlorine is 35.5. Then equals to 40 plus 71. Then here 1 U. Then this is the formula unit mass of calcium chloride. Then in such a way we can calculate molecular mass and formula unit mass. Our next topic is mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी यूनिट एंड उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाती है। इन सभी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं दैट वी ऑलरेडी नो दैट इन 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स, 1 gross equals to 144 items. Okay, 1 dozen that means 12 items, 1 gross that means 144 items. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने बोला 1 डजन तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि जो 12 आइटम्स कोई भी फिक्स 12 आइटम्स है, जैसे कि अगर 12 आइटम्स जैसे 12 ये मार्कर्स होंगे तो ही 1 डजन होगा, या फिर ये 12 वॉचेस होगी तो ही ये 1 डजन होगा। नो, अगर चाहे कोई भी 12 नंबर्स में अगर ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन है तो वो क्या होगा, देन इट इज 1 डजन। सिमिलरली इट इज आल्सो नोन एज 144 आइटम्स, दैट मींस 1 ग्रोस। मतलब अगर सिर्फ ये कहा जाए दैट मींस 1 डजन पेन, दैट मींस 12 नंबर ऑफ पेन, 1 डजन एप्पल्स, देन 12 नंबर ऑफ एटम्स, सिमिलरली 1 ग्रोस। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, जब हम उसके सैंपल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लार्ज नंबर के साथ में डील करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो एक अलग से यूनिट है उसको प्रपोज किया, क्योंकि जो इतने लार्ज नंबर है हम उनके साथ में ऐसे डील नहीं कर सकते जैसे बार बार, जैसे 10⁻23, 10⁻25 ऐसे हर बार नहीं लिख सकते। अगर जो यूनिट है अगर वो होती है तो उससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है हमारे लिए। ओके, देन लेट्स वी स्टार्ट अवर मोल कॉन्सेप्ट। नाउ मोल, ओके, देन द वर्ड मोल इंट्रोड्यूस्ड इन 1896 बाय साइंटिस्ट विल्हेल्म ऑस्टवॉल्ड। ओके, तो जो सबसे पहले तो जो मोल वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, विल्हेल्म ऑस्टवॉल्ड ने इन 1896। एंड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग हीप और पाइल, और जो ये वर्ड है एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट है मोल्स विच इज मीन्स हीप और पाइल, बिकॉज देयर इज अ हीप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एनी सब्सटेंस। एंड द यूनिट एक्सेप्टेड इन 1967। जो मोल वर्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1896 में, बट द मोल एज अ यूनिट वो एक्सेप्ट की गई थी इन 1967। एंड द डेफिनेशन ऑफ मोल इज, a mole is the amount of substance that contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसा ही यूनिट है, जब उसको क्या करते हैं हम, मतलब कि स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तभी उसको क्या किया जाता है, एज ऐसा यूनिट एक्सेप्ट किया जाता है। देन फॉर द मोल, मोल के लिए क्या किया गया था, तो मोल के लिए लिया गया था कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसका एक सैंपल लिया गया था। ओके, दिस इज कार्बन 12, इसका ये क्या है, सैंपल है। ओके, दिस इज सैंपल ऑफ कार्बन 12 isotope and the weight of and the mass of the carbon 12 isotope is 12 gram। ओके, तो ये अभी 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, कई सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि इस 12 ग्राम सैंपल में
जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही क्या इक्वल होगा 1 मोल के। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 12 आइटम्स वो 1 डजन, अगर इसके अंदर 12 नंबर ऑफ एटम्स होते तो हम क्या कहते कि इट इज 1, देयर इज 1 डजन एटम्स। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है, मिलियंस बिलियंस में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्डाइज्ड एज अ मोल व्हिच इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, देन जो मोल की जो डेफिनेशन है उसके अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज का मीनिंग है, वहां उसका मीनिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, चार्जेस और एनी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो जो ये क्लियर हो गया कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट होगी वो किसके इक्वल्स में होगी, 1 मोल के। 1 mole equals to number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotopes, and by the experiments 1 mole equals to 6.022 into 10 raised to 23। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है कि जो 1 मोल है वो कितने नंबर्स के इक्वल है, तो वो 6.022 into 10 raised to 23 नंबर्स के इक्वल है। दैट्स क्लियर, एंड दिस नंबर इट इज नाउन एज Avogadro constant in the honor of this Italian scientist Amedeo Avogadro। ओके, अभी जैसे देखो 1 mole equals to this number, इसको हम क्या कहते हैं, Avogadro constant, but when expressed in unit per mole then it is known as Avogadro number। अगर हम इसको किसके अंदर, मोल इनवर्स यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज नाउन एज Avogadro number and it is denoted by Na। ओके, जो Avogadro कांस्टेंट है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, बाय द सिंबल ऑफ Na, और इस सिंबल के अंदर जो N है वो कैपिटल में है और जो A है वो भी कैपिटल लेटर में है, बट A कहाँ पे है, ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम के अंदर। ठीक है, देन इट इज सिंबल ऑफ Avogadro कांस्टेंट। Avogadro कांस्टेंट और Avogadro जो नंबर है उन दोनों में एक डिफरेंस क्या है, दैट Avogadro कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट बट Avogadro नंबर हैव अ यूनिट व्हिच इज मोल इनवर्स। The next one is the Na number of electrons is called 1 mole of electrons। अगर जो Avogadro कांस्टेंट के नंबर के इक्वल में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब हम उनको क्या कहेंगे, दैट व्हिच इज नाउन एज 1 mole of electrons। ठीक है, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.60 into 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है तो जितने Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उन सभी के चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको Na नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। देन 1.60 into 10⁻⁻19 into 6.022 into 10⁻23। When we calculate these number, then the result is 96500 coulomb, and this number, this quantity is known as 1 Faraday। Faraday, okay, then this number is known as 1 Faraday, which you will study in the physics portion of the science। Okay, then 1 Faraday, and the 1 Faraday is the amount of charge which is exhibited by the 1 mole of the electrons। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, नंबर ऑफ मोल से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको किसके साथ में कवर कर लिया, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज मोलर मास। देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। कि जो एक मोल होता है उसमें एनी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनी एंटिटीज प्रेजेंट होती है, तो कंप्लीट 1 मोल या फिर उन कंप्लीट एटम्स या फिर एंटिटीज का जो मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। न्यूमेरिकली 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं मोलर मास की, तो वो उन्हीं के इक्वल होती है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी फॉर्मूले का फॉर्मूला यूनिट मास होता है। तो जो वैल्यूज वो आती हैं एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास, वो न्यूमेरिकली मोलर मास की वैल्यू की इक्वल होती है, बट मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ओके, देन फॉर एग्जांपल कि जो NaCl
सोडियम क्लोराइड का हमने अभी फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया था, तो वो क्या आया था 58.5 U। ओके, तो ये क्या है फॉर्मूला यूनिट मास। अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, then what is the meaning of 58.5 U? That means there is only one formula of sodium chloride. And what is the meaning of 58.5 gram per mole of sodium chloride? That means there is 1 mole of sodium chloride is present, or any number of atoms of sodium chloride is present. That's clear? तो ये हो गया 58.5 U and this is formula unit mass and this is molar mass. अगर एक और एग्जांपल की बात करते तो कैल्शियम, then the atomic mass of calcium is 40 U and the molar mass of calcium is 40 gram. That means 40 U, that means here the mass of only one atom of calcium, and 40 grams, that means the mass of 1 mole of calcium. Okay, the next one is molar mass of atoms is called gram atomic mass. अगर हम किसी भी एटम्स की अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं तो उसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नाउन एज ग्राम एटॉमिक मास. Then for example, atomic mass of calcium is 40 U and the gram atomic mass of calcium is equals to 40 gram per mole. And the next one is molar mass of molecule is called gram molecular mass. And here molecular mass of for example, देखो जैसे एटम्स का अगर मोलर मास हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में, और अगर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास अगर हम एक्सप्रेस करना है तो वो हम किस में करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में. फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 U, जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया था पहले, एंड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल. एंड द मीनिंग ऑफ 18 U, दैट मीन्स दिस इज mass of one molecule of water, and 18 gram per mole, that means it is the mass of one mole molecules of water. Okay, then 1 gram atomic mass equals to mass of Na atoms and 1 gram molecular mass equals to mass of Na molecules, and that means Avogadro number, which is 6.022 into 10⁻23. And now here the relation between number of moles, number of atoms or molecules, and the molar mass of substance and the mass of substance. Okay, then first one is number of moles equals to mass of substance, which is given in our problem, divided by molar mass of substance. अगर इन तीनों में से अगर कोई भी 2 वैल्यूज अगर हमें गिवन होगी तो हम थर्ड वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलर मास. देन मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू the atomic, molecular and formula unit mass of any substance. The next one is number of molecules or atoms equals to mass of substance divided by molar mass into Avogadro constant. Then this is the relation between number of moles or atoms or mass of substance or molar mass and Avogadro constant. Avogadro constant की ऑलरेडी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन होती है. इन अननोन वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज हमें गिवन होगी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू. ओके, देन नेक्स्ट वन इज this part is equals to number of moles, that's why number of molecules or atoms is equals to number of moles into Avogadro constant. Then this is complete mole concept, and with this our part 6 of this chapter is now completed. अभी इस कंप्लीट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.